ये एक्चुअल मेंटरशिप का डैशबोर्ड है जहाँ पे सब कुछ लॉग होता है, क्या हुआ मेंटरशिप बाद, कितने नंबर आ रहे हैं, कितना कवर कर लिया है, कितने माइलस्टोन हो गए। हमने सारे सिलेबस को एक माइलस्टोन में डिवाइड करके रखा है। आई गिव यू एग्जैक्ट प्लान मंथ वाइज। आई विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेस. At the end of the session, I'll also give you some of the free content that UPSC gives, right? Beyond standard books में और क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरे को एक दो आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता रहे अपने GS 1 2 3 4 के आंसर का. दैट इज एक्स फैक्टर नोट्स. वो पेपर हो चुका है लास्ट ईयर, उसमें आप 100 में से 100 भी सॉल्व कर लो. आपको क्या रैंक आ रही है क्या? द आइडिया इज व्हाट इज द इनसाइट दैट आई कैन गेट, that I can use in my preparation to perform better in my actual attempt. Whatever you will study for next 4 5 months is nothing but your foundation. Every single thing you will study current affairs, you will have to rely on your foundation. Write down this number. This is my own number. 9266777821. And if you are interested in some mentorship, etc., just call. We'll discuss. I'll help you with the scholarship, etc. also. What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be Civil's Daily. You need to have that X factor in your answer. With the help of X factor notes, this is the best notes you can have. I used to read their X factor notes. The questions are very good, and even the answers were very detailed, and they were, I extracted a lot of content from them. Today we are discussing about 2027 attempt. Generally, you will see aspirant starting their preparation, let's say May or June of, because the UPC exam cycle is like that. So you'll start like 1.5 year before, right? But if you're attempting 2027 and if you are a serious aspirant and you wanted to start early, you kind of, I'm assuming generally people will start in May or June. Let's say from May or June till September, these 4 5 months, you started, you were trying to do something. आपने NCERT पढ़ी, थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, कुछ नोट्स मिल गए तो वो पढ़ लिया, टॉपर्स की कॉपीज देख ली, कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ डेली रूटीन है. बट अभी भी आपको यू आर नॉट गेटिंग द फील ऑफ अ सीरियस प्रिपरेशन. दिस सेशन इज हाईली relevant for you because even if you have lost last 4 5 months out of some confusion, anything could be any reason, but now you want to get into a very serious mode of preparation for 2027, this session will help you do that. I have created the session just for that. Okay, I'll give you exact plan month wise. I will give you all the resources. At the end of the session, I'll also give you some of the free content that UPSC gives, right? Okay, like I said, at that, just wait till for next 30 40 minutes. At the end of the session, I'll give you all this content PDF link so that you are able to go through all of the content. This includes your previous year questions, your micro themes, your NCERTs, annotated NCERT essay document. Everything is there, right? Your burning issue magazine, so that you as a beginner can start your preparation on a right note. I want to start the session with a very important data point. If you see, out of 748 recommended candidates, only almost 8% are qualifying in their first attempt. Second attempt is almost 14%. Third and fourth attempt makes the majority of the selection. Then you have fifth and sixth attempt. As the attempt increases, the selection percentage is going down. Out of 47, almost 50% candidates who appeared in prelims 21, they were attempting for the first time. So at one place, you see only half of the candidates are attempting for the first time, which also tells you more than or almost half of the people of your half of your competition is repeating the prelims. The only thing you need to remember out of this data point is that if you will take any day, any single day, any week of your preparation for granted, please understand, already you're working against yourself, because examination is not, it's not a piece of cake. Like what, as opposed to what people say outside, easy hai, kar lo. This is not. Cream of India is going to sit with you. People who have already qualified the exam are going to sit with you. They have a rank. They are in the service. जिनकी पीछे रैंक आती है 700 800, वो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं. जो पहले मेंस निकाल चुके हैं, इंटरव्यू या टोटल कट ऑफ में नीचे रह गए, वो दे रहे हैं. जिनको रैंक इंप्रूव करनी है, वो दे रहे हैं. जो ऑलरेडी प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स निकाल चुके हैं बट मेंस में नहीं हो रहा है, वो दे रहे हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब एट नो पॉइंट इन टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन यू शुड बी गेटिंग कॉम्प्लेसेंट. ओके, जस्ट बिकॉज यू आर स्कोरिंग सम मार्क्स इन द टेस्ट एंड उसका रीजन भी नहीं पता व्हाई यू आर इंप्रूविंग एक्सेट्रा. तो मतलब make sure this reality is in front of you when you're preparing for the first time, especially if you're a beginner. Only 7 to 8% of people are qualifying the exam in their first attempt. Okay, and this is another, the last year data you can see, approx 38 in-service officers are there in the top 100 rank. And if you include the other people who are in the state services, who are in other allied services, number makes up to almost 60 to 65. Okay, so out of 100 ranks that you see in UPSC top 100 people, almost 60 to 70 people are already in some service. So that leaves you only 25 to 30 seats. These are fresh people who have never qualified the exam before. They might have qualified some stages of exam, prelims nikla hoga, mains nikla hoga, but please understand and look at this. First attempt, not more than 6 to 7 students in top 100.
only 6 to 7 students in top 100. So if this is your first attempt, please make sure you are very, very like careful about your preparation. You're not confused about it anymore, as opposed to last 4 5 months. एक बिल्कुल sharp strategy रखेगा ना, and this session is about that. Make sure that you are making your notes, etc. Let's understand what are the competencies that UPSC is testing, and I've tried to divide it in two parts. One which is very obvious, that is on your left side of the screen, which is seen. Like you actually see it, like अच्छा ये चीजें तो चाहिए, तो रैंकर भी बोलते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी ये सब कर रहे हैं, मेरे कलीग्स भी ये सब कर रहे हैं, मैं जिनके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी ये सब कर रहे हैं. एवरी दिस थिंग इज known to everyone, but then there is unseen part of it, right? Be aware of both the tables, right? So quickly I'll go through a number of subjects. You know the number of subjects that you have to study. उन सारे subjects में UPSC आपकी reasonable level पे competency test करेगी, slightly more in your optional. So your optional has to be in your control all the time in your preparation. Essay, ethics and interview, they have some distinct advantage because वहाँ पे सिर्फ आपका knowledge test नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपके answer writing, articulation, abilities भी test हो रही है. Can you think in the moment on the feet? Because essay का ऐसा कुछ syllabus नहीं है, right? Like in ethics में it's I call it SRTs, like situation reaction test. They'll give you certain case studies. अब आपका दिमाग कितना चलता है, कितने dimensions में चलता है, और not only चलता है, क्या आप उसको अच्छे से articulate करके लिख सकते हो उन 5 7 मिनट में. Not only that you can write, but can you write it better than others? ये तीन चीजें टेस्ट हो रही है. तो यहाँ पे, और of course optional also. The interview is about your personality. They don't even call it interview. अगर आप UPSC की वेबसाइट पे सिलेबस देखने जाओगे तो they call it personality test for a reason. Prelims, everyone knows that this is of course a qualifying exam, but इसमें भी बहुत सारी चीजें nuances हैं कि भाई CSET टफ होते जा रहा है. There are people who say कि MBA level पे चला गया है कई in last 1 or 2 years. There are few questions जो इतने टफ आ गए हैं. People who come from maths background, engineering background, जिनके पिछले बार रैंक आ चुकी है वो भी फंस जा रहे हैं. There are IPS who have stuck just because of CSET, by the way, if you don't know, and people who have maths background. So please understand, maths and aptitude are completely two different things. Okay, so यहाँ पे अपनी competency test करती है UPSC. नॉन एकेडमिक में ऑफकोर्स ऑन द डी डे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम एंजाइटी है, फोमो है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो एग्जाम का एटमॉस्फेयर में कभी बैठा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू compete एट इंडिया लेवल, राइट? नेशनल लेवल के कोई एग्जाम नहीं दिए कभी, जो कुछ भी हो सकता है. एंड लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ टेस्टिंग, इनफ असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज. थिंकिंग की सिलेबस कर लिया तो प्रिपरेशन हो गई या प्रोग्रेस हो गया. सो पढ़ाई अलग चीज होती है, एग्जाम के लिए पढ़ाई इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यहाँ पे एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है. All that matters is can you score more than the other people. That's all. It's a relative competition. That there is a difference between absolute and relative competition. UPSC and any other national level competition, competitive exam is a relative competition. It does not matter आपके 100 में से कितने नंबर आए. As long as you score slightly more than the like others, you will be in the list. That's what matters. If you don't know, the toppers in UPSC score probably 45 to 50% of the total marks. आप देखो रैंकर्स के मार्क्स कितने आते हैं, 1000 1100. टोटल मार्क्स यूपीएससी के कितने हैं, 2075 समथिंग, राइट? सो ऑलमोस्ट 50% मार्क्स इज व्हाट यू नीड. नो अदर एग्जाम, अगर आपके स्कूल में 50% मार्क्स आते, यू विल नॉट बी अ टॉपर और समथिंग. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेटिव कंपटीशन. ठीक है, उस कंपटीशन में प्रेशर को हैंडल करना, एक रिजिलियंस बिल्ड करते रहना, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करते रहना, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूअसली दे आर फेसिंग फेलियर आफ्टर ईच एग्जाम, लाइक प्रीलिम्स में निकल रहा है 5 6 अटेम्प्ट के बाद भी, मेंस में निकल रहा है, एक्सेट्रा. सो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना ओवर द अटेम्प्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो दिस. ऑन अनसीन साइड you have rote learning is insufficient. Like we end up mugging up a lot of things. लास्ट ईयर एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कुछ मैप का, या तो अब वो पूरा मैप का ही रटना शुरू कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, व्हाई इट वाज आस्क्ड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एक्सेट्रा. रिलाइंग ऑन पैसिव मेंटल रिकॉल इज इनएफिशिएंट. पैसिव मेंटल क्या होता है कि मतलब बस आपने एक नोट्स बनाया, एनसीईआरटी पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, लक्ष्मीकांत पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, नोट्स को सामने रख के आप पढ़े जा रहे हो और सोच रहे हो कि रिवीजन हो रहा है. वो एक्टिव रिकॉल कैसे होता है कि मतलब यू आर एक्चुअली राइटिंग और अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, यू आर फोर्सिंग योर ब्रेन टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एट द राइट टाइम. वो नहीं कर रहे हो आप. और ये सारी चीजों को ऐसे जज कर लेना कि मतलब ये तो मेरी प्रिपरेशन हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है. ठीक है. थर्ड इज थीम बेस्ड एंड टर्म बेस्ड. सो थीम बेस्ड इज मतलब देर आर सर्टेन एरियाज इन सिलेबस, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, जहां से यूपीएससी के वो फेवरेट टॉपिक्स है. वो ये दिस इज ट्रू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, इवन फॉर योर ऑप्शनल इन योर मेंस पेपर. They keep on asking questions from those topics. We call them micro themes. I hope a lot of you are aware of the term micro themes. Not making sure कि सिलेबस को भी माइक्रो थीम्स में ब्रेक डाउन करके मैं वो वाले पार्ट्स पहले पढ़ लेता हूँ जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, whether it is for prelims, mains or your option, right? And constantly in figuring out mode, that is again also is a bad idea. A lot of aspirants think like I will see when the option,
like how many of you have started studying optional if you're attempting for 2026? And what is your optional plan? Can someone, like any one of you, there are almost 40, 30 people, like, can you tell me what is your optional plan? Not the name of optional, but by what month you are trying to cover. Will that why I'm asking this, because that's the fourth point. I keep on asking aspirants कि optional का plan क्या है. वो इतना relegate होता है plan, optional को ऐसे रख दिया जाता है जैसे मतलब please, it's a 500 marks paper. मतलब you can never afford to compromise with optional, like there is no chance. And by the way, optional was your choice. UPSC never, other subjects में तो मतलब it is a part of syllabus, right? Like in optional you have to मतलब it's your choice, you have to choose. uh, yeah, but you guys don't seem to have a deadline. Like what deadline will you follow, by what date, etc. So constantly in figuring out mode कि जब आएगा तो कर लेंगे. Not able to not. But if you have started now, complete. I hope Komal you are attempting in 27. But if you are attempting in 26, completing optional by March is a, like, it's extremely bad idea. Don't do that. Okay. Now talking to people who are attempting 2027, there is a difference between 1 year prep and 2 years prep. Okay. If you are preparing, and what is the reason why you should start preparing for 2027 right away? If you were someone who were thinking, ठीक है, next year का March आएगा या May आएगा, तब से I'll start preparing, right? So please understand, you will have to have a 7-8 hours per day if you're a working professional, or if you are someone who is not preparing full time for some reason, etc. College में होते हैं बच्चे. So I don't know how will you be able to pull out 7-8 hours a day, even more when the exam is close, continuously in the reading mode, टेस्टिंग मोड, रिवीजन मोड, बट कोई फीडबैक ही नहीं है. टेस्ट दे जा रहे हैं बट यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि भैया फीडबैक क्या है, लाइक व्हाई एम आई नॉट इंप्रूविंग एटसेट्रा. स्लो डाउन नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, लाइक सच. बट इफ यू हैव 2 years का क्वेश्चन, दैट इज बेस्ट. अगर आप स्टार्टिंग में स्लोली भी पढ़ोगे तो इट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड वट एवर यू विल स्टडी फॉर नेक्स्ट 4-5 months is nothing but your foundation. Every single thing you will study current affairs, you will have to rely on your foundation. इकोनॉमी का कुछ करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो फाउंडेशन, बिना उसके तो कोई चांस ही नहीं ना. एंड आई डिस्कस व्हाई यू शुड बी कवरिंग first 4 foundation subject without even touching current affairs. I made some content around that, right? So these 4-5 you can start very slowly. अपनी conceptual clarity को build कर सकते हो next 4-5 months. अभी भी कर सकते हो. Even if you have lost last 4-5 months, it's completely fine. Your preparation is under control. From here on, just make sure you stick to what I'm saying, okay? So build those foundation for next 4-5 months. Please trust me, including your optional. Whatever you will do for next 1.5 years, it will be 100%. It will only work. Any current affairs, anything, PYQs, anything will only work. Anything will only work in your favor if you have a really good foundation. And this is the only time. इसके बाद ये टाइम नहीं आएगा. अगले 5-6, मैं बोल रहा हूँ, 5-6 महीने के बाद ये टाइम नहीं आएगा जहाँ पे आप इतने स्लोली पढ़ाई कर सकते हो, इतने स्लोली अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हो. उस टाइम पे बस अगेन यूल गेट इनटू द रोड लर्निंग मोड एटसेट्रा, राइट? सो मेक श्योर, लाइक, यहाँ पे ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार बिल्ड हो जाए. मेरे को पता चल रहा है रेपो रेट ये होता है, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है, ये पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका कंसेप्ट मेरे को क्लियर हो चुके हैं. फॉरगेट अबाउट मगिंग अप और रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द आर्टिकल. वो टाइम भी आएगा, बाद में आएगा रिवीजन के टाइम पे. अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे होता है, ठीक है? एंड इट बिल्ड्स अ लॉन्ग टर्म रिटेंशन, बिकॉज आपको ऑफकोर्स रिवीजन का टाइम भी काफी मिलेगा. So who should consider 2 years of preparation and mentorship? If you have never attempted any competitive exam of national level, you should be preparing for 2 years. Start right away. अगले साल का वेट नहीं करना है. अगर आप किसी टॉप मोस्ट कॉलेजेस में नहीं गए, ठीक है, स्टार्ट. इट डजंट मीन कि सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है. दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. एनीवन हु इज लैकिंग कोर यूपीएससी कॉम्पिटेंसी, जो मैंने अभी आपको बता दी, सीन एंड अनसीन दोनों, बट मेजर 3 कॉम्पिटेंसी यहाँ पे भी लिखी है कि डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट नहीं है, या इन जनरल आपको एपेटाइट नहीं है, आप उतना पढ़ाई नहीं किया, उतनी रीडिंग्स नहीं की, इतनी वाइड सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो दे आर नॉट फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, वो पीसीएम से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उनको 5-7-6 साल हो गया लास्ट टाइम उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा था, ठीक है? तो आपके लिए टाइम लगेगा. मतलब प्लीज डोंट अंडरमाइन द डिफिकल्टी ऑफ द सिलेबस. लाइक ऐसे मत कर लेना कि मतलब ट्रिवलाइज कर दिया पूरे यूपीएससी का सिलेबस, क्या है हिस्ट्री में पढ़ लेंगे. इट विल ऑलवेज सरप्राइज यू दैट हाउ मच डेप्थ एंड ब्रेथ यूपीएससी डिमांड्स. आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो इट्स नॉट अ जोक, ठीक है? एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉइंट ए, ऑफ कोर्स, राइटिंग. You will have all the knowledge eventually. There will come a stage in your preparation जहाँ पे आपको सारा ज्ञान है, सारा नॉलेज है, बट आपसे PYQ समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डू आई स्ट्रक्चर माई आंसर, हाउ डू आई राइट बॉडी, कंक्लूड कैसे करूँ, अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट कैसे करूँ, क्या डेटा पॉइंट ऐड करे, क्या एक्सपेक्टर ऐड करे, कौन से कमेटी के नाम, कौन सा डेटा पॉइंट इंट्रोडक्शन में कैसे लिखूँ जो हार्ड हिटिंग हो.
एक एक नंबर एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं अपने बीसी, या पेपर को कंप्लीट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 7 to 8 आउट ऑफ 10 एस्पायरेंट्स फेल टू कंप्लीट एक्चुअल मेंस पेपर, बाय द वे, इफ यू डोंट नो। They fail to write the whole like 20 questions in 3 hours, and you only get 7 to 6 minutes to write one answer, like 10 marks answer। तो मतलब आंसर राइटिंग बहुत टाइम हो गया कि आपने इतने एक्सटेंडेड आंसर्स लिखे हैं, तो यू शुड बी स्टार्टिंग राइट अवे। ठीक है, दिस इज योर डेट। आर यू अवेयर ऑफ the dates? This is for your 2027. You will have dates will come, notification will come next year, but यही मंथ्स होंगे, यही साइकिल है अभी यूपीएससी का। मई 2027 संडे होगा, दैट विल बी योर प्रीलिम्स। सुबह शाम जीएस का पेपर, शाम को सीसेट। यू हैव योर मेंस, फ्राइडे से शुरू होता है, फ्राइडे को अगस्त को, ऑलमोस्ट लास्ट वीक या थर्ड वीक में फ्राइडे को यूल हैव पेपर, सैटरडे संडे 3 days you'll have your mains, and then optional paper, etc., and then qualifying paper। ठीक है, so I hope remember these months, remember this cycle, right? Make sure our idea is कि पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छे से कर लो, whoever is here please make sure कि, because lot of times if you have attempted once or twice, you will relate to what I'm saying. There are a lot of obvious mistake aspirants end up realizing after they attempt 2-3 times. Trust me on, like very like obviousest of the mistake, like very normal mistakes they realize after they, I just told you, like lot of aspirants when they attempt mains for the first time, उनको इतना अजीब लगता है कि मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया। It's such a obvious thing कि I should have done this under a time limit multiple times in my preparation phase, कि मेरे से होता भी है कि नहीं, पर वो इतनी obvious mistake है कि उनको एग्जाम के दिन पता चलती है, it's too late। Not only that, please, this is a layered problem। Not only that you should be able to complete the paper, you should be able to whatever answers you are writing, you should be writing better than others। वो तो competition का point है। So today and whatever programs, mentorship we do, whatever content, our aim is कि least time possible में आप exam ready हो जाओ, right? So let's cut to the chase। You probably have around 20-22 months। This is considering prelims। May, आज से लेके मई तक इतना ही months है आपके पास। Not इतना, मतलब it's almost 1.5 year। like इतना नहीं है कि आप बिल्कुल chill हो जाओ, आपसे serious ही होना पड़ेगा। ठीक है, like I said, forget everything else। okay, start with the 4 foundation subjects। कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। if you are attempting for 2026, you should be able to complete your mains, GS 1 2 3 4, all the subjects। if you can't do that, you should be able to complete at least GS paper 2, 3 and 4। why not GS 1? because GS 1 का बहुत सारा syllabus, lot of syllabus, almost 80-90% syllabus of GS 1 overlaps with your prelims। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप वो करोगे तो वो हो जाएगा, एक्सेप्ट सोसाइटी पार्ट इन GS पेपर 1। बट 2, 3, 4 तो आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो दिसंबर एंड या जनवरी एंड तक। साथ में पैरेलल में आपको ऑप्शनल करना पड़ेगा, एंड ऑप्शनल का अगर पूरा नहीं हो सकता पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देयर इज, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास अब। ठीक है, this is for 26। 27 if you're attempting, don't touch optional, don't touch current affairs। if you want, if you already have a habit of reading newspaper, awesome, आप पढ़ते रहो, बट करंट अफेयर्स का कोई नोट्स बना लेना, किसी कोचिंग का मैगजीन पढ़ रहे हो आप, कुछ कर रहे हो, मत करो। आप प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आपको पता ही नहीं है इकोनॉमी या ज्योग्राफी के बारे में, कुछ फिनोमेना नहीं पता है, कुछ पॉलिटी का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप क्या मतलब क्यों अपना वो 2 घंटे खराब करना है न्यूज़पेपर पढ़ के? कुछ बंद, आपका एम ये थोड़ी है कि एक चेक मार्क लगा दूं सुबह के 2 घंटे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। एम तो ये है कि प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं मेरी, मतलब प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, जहां मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज एवरीथिंग एल्स कैन वेट। प्लीज प्रॉमिस टू योरसेल्फ, मेरे को पहले इन 4 सब्जेक्ट्स में अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टॉप नॉच बनाना है, फंडामेंटल्स को बिल्कुल सॉलिड करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी भी आपको अगर डाउट है, लेट मी गिव यू सम प्रूफ्स। दिस इज एक्चुअल पेपर ऑफ दिस ईयर्स मेंस। this year आप मेरे को बताओ, look at this question। what is sea surface temperature rise? how does it affect the formation of tropical cyclone? Pure geography question है। let's see this modern history question। what were the events that led to quit India movements? point out its results। look at this ancient history। estimate the contribution of Pallavas of Kachi for the development of art and literature of South India। मतलब I can just go on, और देख लो what is the phenomena of cloudburst? explain। I can मतलब ये देख लो, और एंशिएंट हिस्ट्री में और देख लो। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड, वो एनालिसिस करने बोल रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको एक पेज में दिखा दिए, ये लिटरली 1 2 3 4 क्वेश्चन है। लेट मी शो यू पेपर 3। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? आपको इन्फ्लेशन टर्म ही नहीं समझ में आ रहा है, या फूड इन्फ्लेशन टर्म समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ
of the RBI to control this type of inflation. Cause and effect relationship पूछ रहे हैं, प्योर like legit स्टैंडर्ड बुक क्वेश्चन है. इससे ज्यादा आपको मतलब जैसे लाइक मंथ वन ऑफ प्रिपरेशन, मंथ वन में जो बच्चा पढ़ता है ना इन्फ्लेशन, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है. आप कहाँ पे अभी न्यूज़पेपर में लगे हो क्या अभी? अगर 2027, ये एक्चुअल पेपर दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लो आप. एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. ये टॉपिक तो मतलब हर साल पूछे जा रहे हैं वो. तो लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चंस देख लो आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे क्वेश्चन देख लो आप. मतलब ये प्योर स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ करंट अफेयर्स का कुछ नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत एक्स फैक्टर या सब्सटेंशिएशन करने हैं. जब आप आंसर लिख रहे हो तो बॉडी पार्ट में कुछ रीसेंट एग्जांपल्स अगर आप लिख दो, बट वो आपकी फोर्थ प्रॉब्लम है. आपने पहली दूसरी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं की, आपका बेसिक आ ही नहीं रहा अभी. ठीक है, ये अगेन यू कैन सी हाउ फार is it correct to say the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? Pure post सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है. एनसीईआरटीज में यू कैन ट्रेस बैक दिस क्वेश्चन, राइट? तो ये देख लो, हाउ फॉर दिस इज अगेन योर मॉडर्न हिस्ट्री. हाउ फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ये तो आप मतलब ये तो आई एम श्योर आपने स्कूल का आपको मेमोरी होगा इस क्वेश्चन का. तो आपने एनसीईआरटीज में सुना होगा ये सब तो, कि कैसे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द कॉलोनियल रूल. सुना होगा? टेल मी यस और नो. ये तो मतलब दिस वी कीप हेयरिंग एवरी टाइम कि देयर थम्स वर ब्रोकन एंड ये सब तो बहुत सारा फेमस लेजेंड्स हैं इंडिया में कि ब्रिटिश राज के टाइम पे कैसे ये सब होता था, क्रुएलिटी एक्सेट्रा, राइट? सो मतलब इतनी बेसिक क्वेश्चंस भी अगर दे आर नॉट बेसिक एज मीन लाइक कोई भी अटेम्प्ट करके कुछ भी नंबर ले आएगा, यू विल स्टिल हैव टू राइट अ वेरी सॉलिड आंसर, वेरी आर्टिकुलेट आंसर. आपको फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इसकी. बट आई एम प्लीज, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आप नहीं करो कुछ भी करंट अफेयर्स टच अभी. सबसे पहला एम हमारा ये है कि हम अपने 4 सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी में सॉलिड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं अगले कुछ महीनों में. ठीक है, अगेन लाइक ये पॉलिटी का आप कहीं से भी उठा के देख सकते हो. इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पे क्वेश्चन है, सीएजी पे क्वेश्चन है. देख लो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो. लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है, हर साल उस पे क्वेश्चन आता है बाय द वे. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? तो मतलब again the idea is, again another paper, the idea is that to make sure that you are like very clear with this idea, and please write yes or no if you understood what I'm trying to say. Did you understand the importance of covering 4 foundation subject first? Forget everything else. I am trying to simplify. अगर आपको कभी भी कुछ कंफ्यूजन है, आप वापस आ जाओ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी. टाइमलाइन मैं बता रहा हूँ कब तक करना है, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. आई एम टेलिंग यू कब तक, लाइक व्हाट बाय व्हाट मंथ आई शुड बी कवर. आई एम कमिंग ऑन दैट. बट अगर हम 2027 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमको अभी सिर्फ अपने 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है. अभी बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है अपनी प्रिपरेशन में. ठीक है ना? कोई if don't like look, if you already have a habit of reading newspaper, please don't change that. It's okay, like it's completely fine. ठीक है, 145 minutes, 30 minutes, you like doing it irrespective of UPSC preparation. You are someone who wants to be in the know, you wants to be aware of what is going on. Good, awesome, that is extremely good habit, keep doing it. बट बैठ के नोट्स नहीं बनाना है या एक हेडिक नहीं लेना है कि मतलब अब इसका मैं क्या करूं. वो जो टिपिकल होता है स्टैटिक, क्रॉस करंट अफेयर्स, इंटरलिंकेज, वो बड़े बड़े शब्द अभी नहीं. सिंपल पीवाईक्यू उठा लो, या भी मैं माइक्रो थीम का आपको दे दूंगा लिंक. आप देखो भैया ये पीवाईक्यू आ रहा है, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हैज बीन आस्किंग. आई कैन लिटरली ट्रेस देम बैक टू माय स्टैंडर्ड बुक्स और सम इंटरनेट रिसर्च और समवेयर लाइक योर एनसीईआरटी एक्सेट्रा. या फिर आप अगर कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो क्लास के नोट्स है, कोचिंग के नोट्स है, बस उसको पढ़ना है अच्छे से. कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नो मगिंग अप, नो रोट लर्निंग, no taking headache of, oh, I am not able to remember the article number, oh, I am not able to remember that data point of economy, oh, I'm not able to understand or remember the river structure or the river flow direction or the name of the place in geography. Isn't it normal that you're studying for the first time? Of course you'll forget. You're only human, you're not a machine, so you will forget. 200% you will forget. But make sure कि concept समझ में आ गया है. अगली बार अगर मैं आपसे पूछूं how does a cyclone forms, you cannot be confused about that. ठीक है, that concept has to be types of cyclone, where, at what geographical area, what kind of cyclone, hurricane, वो सब it's fine. You will remember them eventually because of revision, because of lot of PYQs. But concepts you cannot. You will have to have that conceptual clarity in next few months. ठीक है, let me give you a certain timeline. We are in October now, like September is over. So I'm saying September end, starting from October, first week, from today, from tomorrow. Like I said, phase 1, big 4 subjects. From where? Everyone knows the standard books. Okay. NCERTs, let me give you some clarification. If you are someone who
have not read any NCERT as of today, it is completely fine that you can start from 11th class NCERT and 12th class NCERT. Trust me, you will not miss anything. Please understand, like, don't start from 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. It's okay. You can start from 11th and 12th. But let's say if you are going through 12th class NCERT, 11th class NCERT, let's say geography or polity, and you found this particular concept, you're struggling with it. You're like, it's hard to understand. Then you can go down. Like then you can be like 10th class, 9th class, 6th class. There is nothing that is there in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th NCERT which is not covered in 11th and 12th. I guarantee you, you can check. I'm just trying to save your time. Okay? The way to do NCERT is to categorize, and what civils did, I'll show you how to do NCERT. We have annotated NCERT, like we have already color differentiated them कि कहीं से अगर कोई क्वेश्चन आया PYQ तो हमने उसको कलर कर दिया है, कोई फैक्ट्स है, कोई डेटा पॉइंट्स है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वी हैव कलर्ड इट, वी हैव कलर डिफरेंशिएटेड इट, पिंक, ग्रीन, ब्लू ऐसे करके, so that a aspirant clearly can differentiate a segment of information or a paragraph कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन आया है, I should be able to give more attention to it because PYQ आया हुआ है यहाँ से डायरेक्ट. I hope you understood what is annotated NCERT. So start 11th and 12th, okay? Don't panic about the 6th, 7th. But if you are already in the midway, बहुत सारे बच्चे होंगे जो already like you are doing 6th, 7th, 8th, 9th, it's completely fine. Then while you are doing NCERT, try to finish 11th and 12th NCERT probably in 2 weeks. It's more than enough if you are studying 5 to 7, 8 hours a day. More than enough. Give them a good reading. The aim is not to finish NCERT, but to have again conceptual understanding, conceptual clarity. Okay? If you are someone who likes to make notes, feel free to make notes. A4 paper lo likho. No aim of making notes. Okay? One pager. We are not at that stage of preparation right now. We are just starting our preparation basic. So just write for your own sake. Mains micro theme is something जहाँ से UPSC हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है. We will share the document at the end of the session. You will have all the mains micro theme which UPSC has been asking. Okay. So what you want to do once you have covered your NCERT in next 2 to 3 weeks, you want to shift it to standard books. Basis your own liking. Some people like to start with polity, then economy, then they do geography, then they do history, right? Some people like history more, some people like geography. No set pattern. आप start जहाँ से करोगे लोग. Generally, it is said it is also a preference of majority of the aspirant. They start with polity and economy. One reason is because you can, whenever you will pick up the Hindu newspaper or Indian Express, you will see a lot of overlap in these two subjects. Like अगर आपको इकोनॉमी और पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा ना बहुत अच्छे से, तो आपको न्यूज़पेपर जल्दी समझ में आने लगेगा. हिस्ट्री के उतने करंट अफेयर्स होंगे नहीं, ज्योग्राफी के उतने करंट अफेयर्स होंगे नहीं. सो मेजॉरिटी यू विल सी करंट अफेयर्स कमिंग फ्रॉम पेपर 3 and paper 2, GS paper 2 and paper 3 in mains, I am saying. So that's why polity and economy is the preference. Then comes, so from September till February, good, you have almost what, October, November, December, January, February, 5 to 6 months. You should be able to have a good reading of these 4 subjects, complete understanding of these 4 subjects from the mains point of view. Okay. If you are someone who likes to prepare GS paper 1, 2, 3, 4, good. If you are someone who likes to prepare polity economy subject wise, good. It does not make any difference. Okay. But make sure, no, we are talking about 2027 exam. I am only talking about 27. So by February, you should have a good one reading of this. From February, we can start our optional preparation. Okay? We can start reading paper 1 of our optional. The way to do it is to first have a PYQ printout. 4, 5, 6, 7, 10 years, whatever is your optional. Have that PYQ. Have, even if you don't understand, have some, fight hard to understand the nature of questions. Struggle with it, it's completely fine. But, and go to YouTube, find some 2-3 toppers का strategy video. I'm sure आपके टॉपर ने, आपके ऑप्शनल के टॉपर ने कुछ तो उस पर स्ट्रेटजी बताया. जस्ट एक बेसिक कि भैया these are the books, this is how I prepared, this much months it took me to prepare, I started answer writing by this month, ऐसे करके, like something. ठीक है. Best if you also can find the topper copies for your optional. ठीक है. This is just for reference. इससे आगे अपने को confusion नहीं लाने. टॉपर के 1-2 वीडियो देख लो, टाइमलाइन समझ लो, रिसोर्सेज समझ लो, उन्होंने कहाँ से पढ़े, अगर उनकी कॉपीज मिल रही है तो वो रख लो, और PYQ रख लो. बेस्ट नथिंग. बाकी आपके पास आपकी ऑप्शनल की किताबें, वहां से लेके 3-4 महीने हम ऑप्शनल करेंगे. पेपर 1 तो करना ही है. लाइक वी हैव टू डू पेपर 1 इन दोज नेक्स्ट 2 to 3 months. Okay, make sure in next 2-3 months you at least do paper 1. When I say do, you have gone through the PYQs also. Not writing. I'm not asking you to write.
but you have gone through the PYQs, and let's say you cover a certain segment of your optional, आपने 5-6 चैप्टर कर लिए, हम PYQ उठाएंगे, PYQ में देखेंगे अच्छा ये क्वेश्चन आया है जहां से मैंने कवर किया है। अभी मैं आपसे लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपने ऑप्शनल समझ लिया है पेपर 1, तो प्लीज हैव अ गो एट इट। जो PYQ का क्वेश्चन है आप ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करो, आंसर थिंकिंग करो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंट्रो बॉडी में ये 5-6 पॉइंट लिख दूंगा, ठीक है। अभी कुछ आंसर नहीं लिख रहे हैं, बट आई वॉन्ट योर ब्रेन टू वर्क लाइक दिस इज द बेसिक फेज ऑफ आवर प्रिपरेशन। वी नीड टू स्ट्रगल विद दैट हिंड्रेंस की, वो कॉन्फिडेंस आने लगना चाहिए आपके पास कि अच्छा मैं लिख लूंगा, अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो मैं एक दिन लिख भी लूंगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखने जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, पता नहीं आप क्या करोगे। सो मेक श्योर कि यू स्टार्ट फोर्सिंग योर ब्रेन टू थिंक इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर कि मैंने ये टॉपिक कर लिया, PYQ देखता हूँ क्या पूछ रहा है यूपीएससी में। आप यू स्टार्ट आंसर, ट्राई टू स्ट्रगल विद दिस थॉट कि अच्छा ऐसे इंट्रो लिखेंगे, ऐसे बॉडी लिखेंगे, एक्सेट्रा। GS में भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। यू कैन 100% डू दिस इन दिस पार्ट, September to February में जब आप PYQ लिखो तो आंसर थिंकिंग आप करो, ठीक है। नो मैटर हाउ मच योर ब्रेन रजिस्ट, प्लीज स्ट्रगल होगा शुरू में, समझ में नहीं आएगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक क्वेश्चन के फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे करूं, बट जैसे मैंने बोला एक रैंकर में और एक फील्ड एस्पायरेंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, फील्ड एस्पायरेंट भी उतनी ही पढ़ाई करता है, बट रैंक एक पढ़ाई करना और एग्जाम के लिए पढ़ाई करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, स्ट्रगल करो अपने दिमाग में लिखने का, अपनी जो नॉलेज है उसको स्ट्रक्चर करना, एक आर्टिकुलेशन करना, आंसर में लिखना, इंप्रेसिव आंसर लिखना, दूसरों से बेटर आंसर लिखना, वो एक रैंकर की प्रिपरेशन है। हम आखिरी में तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉलेज के लिए थोड़ी। सो वो स्ट्रगल आ जाना चाहिए इस टाइम पे आपके पास। देन कम्स अप्रैल एंड मई में 2026 जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका पेपर होगा। अभी हमारा पेपर नहीं है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 27, बट जब मई में पेपर होगा हमको उस दिन पेपर देना है। 5 नंबर आए, 20 नंबर आए, 40 नंबर आए, हु केयर्स, आपको भी उस दिन पेपर देना है, नॉट लाइक एक्चुअल हॉल में, बट यू विल हैव द एक्सेस टू द पेपर। बैठो, पेपर दो, अगले दिन देना, अगले दिन दो, ठीक है। सुबह शाम सेम टाइम पे देना है, 9:30 से 11:30, और शाम को 2:30 से 4:30, उस टाइम पे दो। दोनों देने, CSET भी देना है। वो इसलिए देना है, आपको रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि यूपीएससी चाहता क्या है भाई, लाइक व्हाट आर दे आस्किंग, from where are they asking, what is the nature of their questions, what kind of themes they are asking now, is there some repetition, is there some kind of basic pattern, CSET का लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है, अभी बिना प्रिपरेशन के भी थोड़ा एप्टीट्यूड मेरे से हो भी पा रहा है कि नहीं, कितना गैप रह जा रहा है मेरा कट ऑफ में, सारा रियलिटी चेक चाहिए। इट्स लाइक अब मेरा छोड़ना नहीं है, तो अगले दिन पेपर देना है नहीं देना, उस दिन नहीं देना तो अगले दिन देना है, बट ये हमारा रियलिटी चेक है, ठीक है। यहाँ तक प्रिपरेशन, इज एवरीवन क्लियर व्हाट वी आर डूइंग? नेक्स्ट 4 to 5 6 months we are preparing our big 4 subjects. After that we are picking up optional with PYQs. After that we are doing revision of, like we'll shift our preparation to prelims थोड़ा बहुत, and then जब prelims की बात कर रहा हूँ, so you will have science, tech, environment, ये सब you will start adding, and then basics like a static part of these subjects. So and then you'll face reality with the prelims paper. Are we clear with this? Yes, no? बेसिक है। अभी I'll come to May 26 से क्या पढ़ना है, that timeline also I'll share, but is it clear till now? Very simple, start with the 4 subjects, shift to optional, basic revision, थोड़ा बहुत आंसर थिंकिंग करना है अपने को, ठीक है, रिवीजन करते रहना है, एंड देन प्रीलिम्स का पेपर फेस करना है, नॉट एक्चुअल प्रीलिम्स, यू विल हैव द एक्सेस टू द पेपर एंड देन यू विल हैव टू सिट डाउन एंड फेस इट, ठीक है। डज नॉट मैटर व्हाट मार्क्स यू, फॉरगेट इट, बट प्लीज स्ट्रगल विद द पेपर कि हो क्या रहा है, लाइक व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग। ग्रेट, ऑसम। नाउ वंस वी हैव चेक्ड आवर प्रीलिम्स पेपर, अभी हमारे पास 1 साल बचा है, we have just 1 year now from that month. I am trusting all of you that you will follow this. Please, if you don't follow this, then you don't have 1 year, फिर you're kind of running behind with your preparation, ठीक है। May 2026 में आपको इतना कर लेना है, then only this is valid for you, this thing, otherwise not valid for you, otherwise अभी तो फिर आप you're running behind almost a year now, 6 to 7 months minimum, you're lagging behind the serious aspirant, so मत करना यार, like don't compromise your preparation like that, these are your prime years, don't waste them, okay। May हो गया, now prelims हो गया, we have checked the prelims paper etc. From June what should be, take a screenshot or whatever, but these are the major timeline, note down or whatever. June we are going back to our basic 4 again. Now this time we are going paper wise, GS paper 1 में, because it's not just history, there are other parts of it, ancient, medieval, modern, world history, कुछ गैप रह गया है, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े थे मैंने, कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि अभी तक अगर मैंने 0 नोट्स बनाए, इस बार अब मैं नोट्स बनाने वाला हूँ। That's a major shift that you have to make. This time you cannot afford not to make notes. Fix all your knowledge gaps, concepts gap, everything.
But while you are revising your big four subjects and paper 1 to paper 3, 4, optional, etc., this time you have to make notes, proper notes. Okay? Now you can start having, if you're doing some current affairs classes, this is the right time. आपका बेसिक हो गया ना, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो. न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ो. न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं 1 पेजर में, A4 पेपर में बनाओ. अब सारे रूल्स अप्लाई होते हैं. क्यों? क्योंकि यू हैव डन द बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स प्रॉपरली. ठीक है. आफ्टर यू विल गेट प्रीवियस पेपर, यू विल आल्सो रियलाइज सम काइंड ऑफ गैप्स कि इस तरीके से यूपीएससी तो कुछ और ही पूछ रहा है, मैं तो पता नहीं क्या कुछ पढ़ लिया है. तो वो सब गैप्स भी आप यहाँ पे आपको रियलिटी खुद से समझ में आ जाएगा. फ्रॉम जून टू अक्टूबर दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, राइट? देन यू विल कम टू some improvement, one more layer of your preparation. I will give you a micro theme PDF at the end of this session. Check how many, whatever you have done in the last 7-8 months, how many of micro themes you have covered. जैसे check mark करते जाने. Micro themes is nothing but the parts of or areas of UPSC syllabus from which are UPSC's favorite. UPSC हर साल वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो you have to keep checking कि मैंने सारे माइक्रो थीम कर लिए कि नहीं. ठीक है. And we also have Smash Mains X Factor notes. I'll give you access to them today. So make sure that also you have gone through them, right? And I'll explain what is X Factor. So then comes this you're doing till January. From January, completely shut down mains. Of course, you're doing optional also in this while parallel to GS. Shut down mains preparation. UPSC prelims is extremely unpredictable. It can just destroy your preparation of last 1.5 years. All this efforts, everything, सब खराब हो जाएगा अगर आपका prelims नहीं निकलेगा तो we cannot take it lightly. So make sure that this prelims preparation of yours is now in control. So from January, we are going prelims. Again, same preparation. Strategy principle is same, that we will start with the prelims micro theme. Okay. And then we will do proper revision. We will attempt a lot of full length tests, lot of assessments. We will check our accuracy. We will see how many questions should I attempt, which subject is strong scoring for me. For some people, polity is there, for economy. what should be the order of preparation, elimination हो पा रहा है कि नहीं, gaps कहाँ पे है. ये 5-6 महीने सिर्फ यही करना है, जनवरी से लेकर मई. So that prelims के बाद टेंशन ही नहीं चाहिए. Like you are 100% sure that by comfortable margin you are like qualifying prelims. On the same day you have that feeling, and then you move on to your mains preparation. After prelims till August, you're doing nothing but doing heavy answer writing practice. From here to here on also you will attempt a lot of tests. I'm not saying you should not. If you have some mock tests, etc., if you're part of our mentorship, you'll be going through all the assessments. But again, you're from after prelims to lot of GS paper and optional revision and lot of answer writing. उसके अलावा कुछ there is nothing there. You cannot be in a situation after prelims आप GS paper 1 का सिलेबस ही कवर कर रहे हो. मतलब वो तो that's like the worst position. ठीक है. इतना प्रेशर आ जाएगा आप पे कि मतलब फालतू में आप अपनी प्रिपरेशन खराब कर लोगे. तो उस टाइम पे तो बेसिक्स आप कवर हो जाना चाहिए. सब रेडी है. रिवीजन भी करना है तो नोट्स रेडी है. लाइक आई सेड, यहाँ से तो नोट्स बहुत सीरियसली बनाने हैं हमें. So from here on, it's just lot of assessment, which is mock test, and lot of revision. That's it. There's nothing else in those 2-3 months. Revision also for optional in GS. You write mains Friday, Saturday, Sunday. Mains is you're writing mains paper, and then interview prep. I'm not going to discuss much about interview prep. That's not a priority right now, but I hope you understand this is the idea. Okay. Did you understand the timeline? Yes, no? For 26, 27? Great. Okay. Quickly, we'll go through a bit faster now. So 3 things. You should be focusing on the right thing. Please understand what is the demand of UPSC and align your strategy according to that demand. It's that simple. Quickly, I'll give you some idea. In polity, focus on power versus limitation kind of thing. UPSC is not going to ask you कौन किसको अपॉइंट करता है या फिर कौन सा आर्टिकल कहाँ का नंबर बताओ. ये सब नहीं है. SSC एग्जाम नहीं है ये. It will ask you which power is not mentioned in what article. Repeated questions are coming on this context. President पे, governor पे, election commission पे. ठीक है. For example, a question has come like what are the powers that president can exercise without council of ministers? So focus on power versus limitation. What is the power of certain body and what are the limitation of that particular post, person or body or institution? इसी type के question ही UPSC पूछ रहा है. This trend you can see. What, my voice is not clear? Can you hear me properly? Yes or no? Okay, cool. So these are the kind of questions you'll see prelims में भी, mains में भी. So focus on power versus limitation. Please write it down on your paper. This is the lens that we need to use when you are going through Lakshmikant, right? This is just one example, but ऐसे ही question पूछ रहा है. ठीक है. UPSC doesn't test rote article. It tests constitutional principle applied in real governance. Balance of power पे पूछ लेगा, GST पे पूछ लेगा, फेडरलिज्म पे पूछ लेगा,
नीति आयोग पे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सेंटर वर्सेस स्टेट टसल जो होता रहता है वो पूछ लेगा, टैक्स शेयरिंग एक्सेट्रा, जीएसटी के इश्यूज है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। लेजिस्लेचर जुडिशरी के पावर बैलेंस पे पूछ लेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज द लेंस। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इसी कंट्रास्ट में ही पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से क्लोज रहोगे एग्जाम के, जो यूपीएससी चाह रहा है पूछना, ठीक है। इकोनॉमी में दे फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ओवर द टर्म्स। लॉजिक पूछते हैं फैक्ट्स की। फॉर एग्जांपल, इट विल रेयरली आस्क कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर है। बट इट विल आस्क कॉज एंड इफेक्ट कि अगर रेपो रेट बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा, एफडीआई का क्या होगा, क्रेडिट फ्लो का क्या होगा, एटसेट्रा का क्या होगा। सो उसी उसी नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस तरीके से ही प्रिपरेशन करो जिससे कि ये बाद में स्ट्रगल ना हो जाए। आप अलग दुनिया में चले जाओगे, आप लग रहा है कि बहुत बुकिश प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी कि अच्छा ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, अचानक से कुछ और ही क्वेश्चन आ रहे हैं। सो प्रिपेयर इन दिस वे। आई एम आई एम फोर्सिंग यू टू थिंक बैकवर्ड। एग्जाम ऐसा है तो आप अपनी प्रिपरेशन को बैकवर्ड वहां से ले आओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम में कुछ और आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री, सिमिलर साउंडिंग मोमेंट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। फॉर विच रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस क्लियरली डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। सो फोकस ऑन व्हाई सर्टेन इवेंट्स हैपेंड, नॉट व्हेन। डेट्स वगैरह ऐसे तो यूपीएससी मतलब इट्स रेयरली इट कैन आस्क, राइट। सो इट विल टेस्ट सीक्वेंस, यू विल सी लॉट ऑफ सिक्वेंशियल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, ये डेट पहले ये हुआ था एक्सेट्रा। या फिर आपने वो देखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1925 के बहुत सारे सीक्वेंस आ चुके हैं पीवाई के प्रीलिम्स में स्पेशली। तो someone is asking me polity slide, 1 second. This is polity, you can take screenshot. Okay, cool. So that is history. In geography you have to have some kind of backward thinking or inverted thinking. What I mean is लोकेशन को ऐसे ही बिना कॉन्टेक्स्ट के याद कर लेना कि अच्छा भैया ये पर्सन इन न्यूज है, प्लेस इन न्यूज है, पिंस जिसको बोलते हैं, देन उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता ही नहीं है। ऑब्जर्व सर्टेन थिंग इन न्यूज, learn the location, learn the logic. Logic means context कि क्यों है, like what is the reason, what is the consequence. So वो प्रिपरेशन में like बिल्कुल मैप मेमोराइजेशन is something that I've written, बिल्कुल ऐसे रट लेना वो नहीं करना है। यूपीएससी नहीं पूछता है वैसे क्वेश्चंस। I've taken an example, the river flows westward, cuts across rift valleys and forms estuary. ये एक्चुअल क्वेश्चन है, this is a prelims question. Now आप प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइक हाउ विल यू इवन, सो बिकॉज यू मक्ड अप अ लोकेशन और अ रिवर नेम, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज या उसके अराउंड का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, अब इस रिवर में आप कैसे गेस करोगे। ये एक्चुअल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो फंस जाओगे प्रिपरेशन में। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर हार्ड वर्क, ऑल ऑफ यू विल वर्क हार्ड, बट हैव अ डायरेक्शन, गिव सर्टेन डायरेक्शन टू दैट, ठीक है। बिकॉज दैट्स व्हाट यूपीएससी इज डूइंग, दीज आर द काइंड ऑफ यूपीएससी इज आस्किंग। इन एनवायरनमेंट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स विद स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, जैसे लाइक आई सेड, राइट, कि फैक्ट्स को आइसोलेट मत करो, किसी रिपोर्ट से जोड़ना है, लोकेशन, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन बॉडीज, तो वहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इन एनवायरनमेंट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड लॉट ऑफ, इवन इन साइंस एंड टेक, लॉट ऑफ इमर्जिंग टेक्स, एआई, क्रिस्पर, जीन एडिटिंग, आपके इसके अराउंड जो एथिक्स इन्वॉल्व है वो सब, सो उन पे तो क्वेश्चन लाइक साइंस में काफी ज्यादा चीजें हो रही हैं, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वगैरह पे हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ समिट है एक्सेट्रा, उन सबको तो बिल्कुल आपको एक जगह लिखना है, ठीक है। फॉर करंट अफेयर्स, लुक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द टाइमलाइन फॉर करंट अफेयर्स कि बिना फाउंडेशन फोर सब्जेक्ट्स के बिना तो अपने को नहीं करना है बिल्कुल। करंट अफेयर्स समझ में भी नहीं आएगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वेस्टेड एफर्ट है। बट द वे टू डू करंट अफेयर्स इज नॉट टू सी, इफ यू लुक एट मेंस प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड टू स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। वन, जब कोई इशू आता है, लाइक थिंक इन टर्म्स ऑफ नॉट इन न्यूज बट इन टर्म्स ऑफ इशू, लाइक व्हाट इज द इशू हेयर, ठीक है। अ इशू डज नॉट, इट्स नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज, इट विल एक्सपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड होगा, कुछ नए स्टेक होल्डर ऐड होंगे, कुछ नया डेवलपमेंट होगा एक्सेट्रा, तो वो स्ट्रेचेबल है, वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहता है। तो वी हैव टू, व्हाट इट मींस इज वी हैव टू कीप कमिंग बैक टू इट, टू अपडेट इट, ठीक है। आप एक न्यूज़पेपर की भी टाइमलाइन बनाओगे तो उसमें आप देखोगे कि हर 2 हफ्ते में किसी ने कुछ बोल दिया उस इशू पे, तो वो हो गया कुछ सबमिट हो गया, तो वो बढ़ते जा रहे हैं, लाइक अ थिंग विच कीप्स ऑन गोइंग। देन कम्स, this is one issue, identifying issues and updating them is one skill. Second is to, wherever a question is asked, they don't ask a question in isolation, there will be some percentage of static, some percentage of current affairs, some mix. So what can I do I have the skill to marry this current affairs with my static portion? That is another skill. The third skill is to, of course, to will I be able to write it as per the demand of the question, but अभी मैं उस पे आ नहीं रहा हूँ। तो these are the three, तो current affairs पढ़ना इसी लेंस से, कैन आई आइडेंटिफाई इशूज, ठीक है, जो बहुत रिपीटेड, जो कि चले जा रहे हैं, उसके बाद कैन हाउ कैन आई मर्ज देम विथ माय स्टैटिक नॉलेज जो मैंने पिछले 1 साल में बिल्ड किया है,
एंड थर्ड इज द आंसर राइटिंग, उस पर तो अभी मैं आ ही नहीं रहा हूँ। तो दैट्स द वे टू डू करंट अफेयर्स। हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, दोनों पढ़ना दोनों पढ़ लो. Then you have government website, then you have other magazines, right? Or you can just pick up some coaching's magazine. We do burning issues, I'll give you access to it अभी. So that's the way to do current affairs. इसके अलावा कुछ है नहीं, but Civis Daily website पे भी update current affairs on a daily basis. Best source you have from there for free. So that's the way. We also have Samachar Manthan. In that, what we do is every week you'll have a classes, 2 classes, online, offline. Then you will be given weekly notes, right? You'll see a lot of questions coming from that. After that, we'll take a 5 mains test, 5 questions main test on that week's current affairs. So your answer writing practice will also happen. Then we'll ask 20 MCQ questions for prelims current affairs preparation. Then we'll evaluate your copies. We'll sit with you one-on-one to do the post-test discussion. जो भी आपने आंसर लिखा है, ये हर हफ्ते होता है. तो आपने हर हफ्ते करंट अफेयर्स भी कर लिए, नोट्स भी बन गए, मेंस का टेस्ट भी दे दिया, करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स भी दे दिया एमसीक्यू. उसके बाद आपने एवेल्यूएशन करके मेंटर के साथ बैठ के फीडबैक भी ले लिया कि कहाँ पे, और हर हफ्ते आप इंप्रूव करते जाओगे. दैट्स द समाचार मंथन वे. इसके अलावा आपको समाचार मंथन कवर्स ऑल द न्यूज़पेपर, ऑल द मैगजीन्स, ऑल द गवर्नमेंट वेबसाइट, एवरीथिंग, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एनीथिंग. वी डोंट लीव एनीथिंग. इट्स द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम. ठीक है. वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन टाइप्स एंड थीम्स. तो whenever you are going through PYQs, make sure you understand the nature of the questions. इस क्वेश्चन को कहाँ पे आप किस कैटेगराइज कर सकते हो, and micro themes, right? Learn them as the micro themes. So when I say learn them as a micro theme, जब आपने एक micro theme, बुद्धिज्म एक micro theme है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसके जब आप नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से बनाना है जैसे मेंस का आंसर लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन लिख दी, कॉज इफेक्ट्स, पॉलिसीज हैं, कुछ केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स है, डायग्राम्स है, कुछ डेटा पॉइंट्स है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कुछ भी है, तो वो write them in the form like a mains answer. It's very important, so that आपका रिकॉल भी अच्छा होगा. ठीक है. I'll give you certain example of the themes जो यूपीएससी हर साल पूछे जा रहे हैं. जीएस पेपर 1 में ये थीम्स है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नेशनलिस्ट मूवमेंट से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं. नॉन कोऑपरेशन, रोल ऑफ पेजेंट्री, हर साल, लाइक एवरी ईयर you'll see questions from here. दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. ठीक है. बस थोड़े बहुत मैंने पॉइंट्स लिख दिए. मैं आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन दे दूंगा. जस्ट वेट. उसमें सारी माइक्रो थीम्स होंगी. सोसाइटी से ये वाले टॉपिक से आ रहे हैं, ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज, मॉनसून्स, हर साल यूल सी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. जीएस पेपर 2 में जस्ट हैव अ ग्लांस, these are the topics from where public policy, Indian neighborhood, right? These are the question. In paper 3, which is economy, environment, tech and security, you will see questions from jobless growth पे आपको हर साल आएगा, you agriculture, food security पे हर साल आएगा, any reforms in that area, MSP, it was a big issue 2-3 years back, वहां से अभी भी चल रहा है. सप्लाई चेन रिफॉर्म्स, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वेटलैंड का तो अभी आई थिंक इफ यू हैव सीन प्राइम मिनिस्टर, ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट वेटलैंड. अभी 3-4 दिन पहले से ही हैज बीन, check his social media, he's been posting about the importance of wetlands, in case if you haven't checked it. So that's a government priority right now, wetland को सेव करना और उसको बेटर करना. तो ये आ ही रहा है. मतलब इतना सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आप इन चीजों को समझ सकते हो कि यूपीएससी कहाँ से टॉपिक उठाने वाला है. अगर वो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी प्रायोरिटी है, आप किस जॉब के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब द लीडर ऑफ द कंट्री इज टॉकिंग अबाउट इट, मतलब यू कैन. सो साइंस एंड टेक में, लाइक आई सेड, इमर्जिंग टेक, बायोएथिक्स, नैनोटेक, एआई, ये तो मतलब these are basic, यहाँ से क्वेश्चन आने ही है. तो द आइडिया इज टू हैव a notes ready for each topics in a way कि ये एक मेंस का आंसर ही लग रहा है. पेपर 4 में आपको सारी केस स्टडीज है, मोरल डिलेमा लिख लो, बैलेंस कंक्लूजन लिख लो, ईस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी का एक जगह बना लो, जो भी पर्सनैलिटीज हैं एथिक्स से रिलेटेड उनका एक जगह बना लो, उनके कोट्स लिख लो. जैसे कि ये रेडी रहेगा. मतलब उस दिन नहीं कि बैठ के अब आप सोच रहे हो किस पर्सनालिटी का कोट से मैं आंसर स्टार्ट करूं, कैसे अपना कंक्लूजन लिखूं, कोई डिलेमा पूछ लिया तो उसको कैसे बैलेंस आउट करूं. ये सब कस्टम रेडी रखना है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल चीजें हैं. ये कोई सरप्राइजिंग चीजें नहीं है. आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आनी है, तो आप रेडी रखो. ठीक है. Once you have that, add X factor to your notes and your answers. The way to do that is, जब आप नोट्स बना रहे होगे, सबसे पहले डेटा, करंट, फैक्ट लिख लिया, कोई पॉलिसी से स्टार्ट कर दिया, वो लिख लिया. ये मैं नोट्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको कैसे बनाने. उसके बाद आप 2-3 डेफिनेशन, कॉजेज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, ये लिख लो नंबर्ड पॉइंट में. ये बॉडी पार्ट हो गया. डेटा और सोर्सेस हैं, अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई कमेटी का नाम है, कुछ भी एक स्टैट है, कोई डेटा पॉइंट है, रिपोर्ट का नाम है, वो लिख लो, जैसे कि एक ही जगह रहेगा. ठीक है. स्टेक होल्डर्स हैं, वो लिख लो, पॉलिसी वर्सेस पीपल. केस स्टडी कुछ हुई है, कोई किसी कंट्री का मॉडल है, कुछ स्टेट का कोई मॉडल है, कोई एग्जाम्पल है किसी ऑफिसर का, किसी गवर्नमेंट बॉडी का, वो लिख दो कि भैया इट वॉज सक्सेसफुल, एज अ रेफरेंस यू कैन सी वट एवर यू आर सजेस्टिंग. दिस गिव्स वेट टू योर सजेशंस एंड टू योर आंसर्स. ये सब चीजें बहुत जरूरी है. डायग्राम, फ्लो चार्ट्स आपको सबको पता है. एंड देन अ प्रैक्टिकल रोड मैप टू इम्प्लीमेंट. ठीक है.
अगर क्रिटिकल एनालिसिस टाइप के डायरेक्टिव्स आ रहे हैं तो आपको एक क्रिटिक लिखनी पड़ेगी कि भैया इसमें ये सारे कंसर्न्स हैं, फेयरनेस का इशू है, फिजिबिलिटी ही नहीं है, बजट इशूज, ये इशूज या टाइमलाइन इशूज, रोड ब्लॉक्स हैं ऐसे। वैल्यू एडिशंस में आप ऑल्टरनेटिव ट्रेड ऑफ लिख सकते हो कि मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के बियॉन्ड व्हाट कैन बी डन। दिस गिव्स रियली गुड इंप्रेशन ऑफ हाउ यू थिंक, एंड ऑफ कोर्स अ बैलेंस स्टेटमेंट टू कंक्लूड द आंसर। सो दिस इज हाउ यू शुड बी मेकिंग नोट्स, ठीक है। क्विकली आई वांट टू कम अबाउट कि पीवाईक्यूज को अंडरमाइन करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल एवर मेक। सेकंड, बिना माइक्रो थीम के पीवाईक्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू। You at the end of the day, whenever you are going through UPSC prelims or mains PYQ, you will have to categorize them under certain themes which are repeatable, so that you can break down whole UPSC syllabus uh, in that way, and you can start preparing that way. So don't chase like PDFs and UDB ये सब जैसे मैंने लिखा है। आप यूपीएससी की टेस्टिंग की फिलोसफी समझने की कोशिश करो कि भैया ये चाहते क्या है, ये मुझे क्या बताना चाह रहे हैं बाय आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि मैं ऐसा क्या समझ लूं लास्ट ईयर के क्वेश्चन से कि मेरी अगले साल जो मैं एक्चुअल पेपर देने वाला हूँ वो और अलाइन हो जाए यूपीएससी की फिलोसफी से, ठीक है। सो यूपीएससी, जो लोग बोलते हैं ना कि रिपीटेबल नहीं है ये, ऑफ कोर्स सर्टेन, अरे भाई उस विद दैट लॉजिक व्हाट इज प्रेडिक्टेबल इन एनी एग्जाम? हर एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब एवरीथिंग इन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। मतलब एज अपोज टू व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि यूपीएससी आपको पहले से सब कुछ फिक्स करके दे दे कि यही आ रहे हैं? by nature of it, any exam will be unpredictable. What do you mean by it? But look one layer deep, two layer deep, you will start to see a pattern. यूपीएससी हर साल पीवाईक्यू में से ही रिपीट करता है, ठीक है। एंड द रीजन व्हाई दे डू इट इज बिकॉज कोर सिलेबस सेम रहता है, एग्जाम का जो डीएनए सेम है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फेडरलिज्म है, ये टॉपिक तो हमेशा ही रहने वाला है। इंडिया का स्ट्रक्चर ही फेडरल फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्री का। देयर इज ऑलवेज अ एक्सचेंज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरलिज्म का बेसिक मतलब ये होता है, वो कभी तो चेंज होने वाला है नहीं ना। उस पे तो क्वेश्चन आने, मतलब दैट, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब व्हिच विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टसल ऑलवेज। सेकुलरिज्म, एमएसपी, बायोडाइवर्सिटी, एथिक्स, ये तो मतलब इनके तो क्वेश्चन आने ही है। तो ये जो एग्जाम का जो डीएनए वो तो कभी चेंज होने ही नहीं है, ये तो हमेशा गवर्नमेंट के चैलेंजेस रहने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जब जीएसटी नहीं था तो टैक्स शेयरिंग का इशू आता था। जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी शेयरिंग हो गया, या जीएसटी काउंसिल आ चुका है अब, तो उस पर पूछेंगे। जब नीति आयोग नहीं था तो कुछ और पूछ रहे थे, आई थिंक प्लानिंग कमीशन यूज टू बी देयर। जब नीति आयोग आ गया तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में पॉलिसी मेकिंग वगैरह पे अब नीति आयोग पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख लो। कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही रहेगा जब कुछ नई चीज आएगी, बट वो फंडामेंटल तो इट्स अबाउट फेडरलिज्म ओनली, राइट, स्टेट वर्सेस सेंटर ओनली। तो वो तो चेंज नहीं होना है कभी। इसलिए एग्जाम का डीएनए स्टैटिक ही रहेगा, वो सेम रहेगा। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन हो गई ना, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूपीएससी बिल्कुल सेम चीज थोड़ी पूछ लेगा? फॉरगेट यूपीएससी, कौन सा एग्जाम ऐसा होता है जो एग्जैक्टली सेम चीज पूछ लेगा? तो ये यूपीएससी का जो बना दिया ना कि अनप्रडिक्टेबल, ये वो फालतू का डर बैठाने की आपके अंदर जरूरत नहीं है। आप जस्ट लुक टू लेयर डीप, एग्जाम आपको खुद हिंट देता है कि यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। सेकंड इज टेस्टिंग कंसेप्चुअल डेप्थ नॉट मेमोरी। ये भी है कि भैया रट लो, ये तो मेमोरी का टेस्ट है। कहाँ से टेस्ट है? 23 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो आप, फाइंड मी वन ह्यूमन बीइंग हु कैन रिमेंबर एवरीथिंग। एंड अगर आपको मेमोरी का टेस्ट है तो आपके 50-45% में तो आपकी रैंक 1 आ रही है, आपको तो याद ही नहीं आ रहा, आप तो उस मोमेंट में जो भी समझ में आ रहा है लिख दे रहे हो। तो इतना प्रेशर मत नहीं डालना है कि मुझे तो वो याद नहीं आ रहा, मुझे तो मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा। इट्स एक्सट्रीमली नॉर्मल टू फॉरगेट थिंग्स। Focus on developing concepts. Focus on understanding, developing conceptual clarities about the subject. Eventually, you will be able to put what you think in words. It will come with enough practice. Don't worry about it. It's about time. ठीक है? But the moment you compromise with conceptual clarity, फिर तो आप मतलब फिर तो वो आप गलती तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, फिर उसको कैसे करेक्ट करोगे आप? इट विल बी टू लेट। सोशियो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, मतलब जैसे कास्ट, कम्युनलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने लिखा है। नेबरहुड के जो भी अपने इश्यूज हैं, जो भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इशू है, कब दे नेवर फुल्ली सॉल्व, राइट? ऐसा कब आया है कि वो फुल्ली सॉल्व हो जाएंगे? अगले साल इंडिया पाकिस्तान इशू सॉल्व हो जाने हैं, नहीं होने। अगले साल चाइना इंडिया के बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाने हैं, नहीं होने। इंडिया का मैरीटाइम इशू सॉल्व हो जाने हैं, नहीं होने। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो उनपे मतलब लाइक आई सेड, पैरामीटर्स चेंज होते रहेंगे, उनके ट्रिगर्स चेंज होते रहेंगे, कंटेक्स्ट चेंज होगा, इशू तो सेम है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको नहीं पता होना चाहिए कि भैया नॉन ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। एज अ कॉन्सेप्ट व्हाट इज नॉन ट्रेड बैरियर मुझे पता होना चाहिए। किसके साथ है? कल चाइना के साथ है, यूएस के साथ है, वो चेंज होता रहेगा। पर मुझे ये ही नहीं पता है कि भैया नॉन ट्रेड, वो तो गलत, दैट्स बैड, राइट? देयर इज अ प्रेडिक्टेबिलिटी इन द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू। जस्ट लुक 2 layers deeper,
इट्स जस्ट द वेरिएशन हैपेंस इन द कॉन्टेक्स्ट कि वो किसी और चीज के बारे में पूछ लेगा। पहले टैक्स शेयरिंग पूछता था, अब जीएसटी में पूछ रहा है, पर कॉन्सेप्ट तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही है, मतलब वो तो चेंज नहीं हुआ, राइट? तो make sure, I hope you are getting what I'm trying to say. Yes or no, please write in the chat. What I hope you are getting the core idea that there is a pro, predictability in this exam, okay? And like I said, the last point, fairness and unpredictability. By repeating themes, यूपीएससी को भी समझ में आ जाता है यार, जो बच्चा बहुत सीरियस है ना, उसको ये सब चीजें समझ में आ जाती है, ये पैटर्न्स, ट्रेंड। आप किसी भी टॉपर से पूछो, वो पीवाईक्यू उनके पढ़ने का तरीका ही अलग है। वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि अच्छा भैया लास्ट ईयर के मेरे से प्रीलिम्स का पीवाईक्यू का पेपर सॉल्व हो गया, मतलब मेरी एग्जाम प्रिपरेशन हो गई। अरे वो तो हो गया ना पेपर, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करके क्या कर लोगे? वो पेपर हो चुका है लास्ट ईयर, उसमें आप 100 में से 100 भी सॉल्व कर लो, आपको क्या रैंक आ रही है क्या? द आइडिया इज व्हाट इज द इनसाइट दैट आई कैन गेट, दैट आई कैन यूज इन माई प्रिपरेशन टू परफॉर्म बेटर इन माई एक्चुअल अटेम्प्ट। पिछले साल का पेपर सॉल्व करने से क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिलना। तो यूपीएससी भी रिवॉर्ड करता है उन एस्पायरेंट्स को जो समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या है, ठीक है? तो दिस इज द रीजन व्हाई यूपीएससी रिपीट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है? एंड आई क्विकली, तो पीवाईक्यू पकड़ो, उसको एक थीम के अंदर कैटेगराइज करो, वेरिएशन समझ लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि डिस्कस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, 2017 में क्वेश्चन पूछा है। थीम है सेंटर स्टेट डायनामिक्स। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी में आस्क अबाउट जीएसटी काउंसिल, या गवर्नर के बारे में पूछ लेगा, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछ लेगा, ठीक है? सो अगर आप वो थीम मास्टर कर लोगे तो आप रेडी हो, कुछ भी पूछ लो आप मेरे से। पीवाईक्यू को क्लस्टर कर लो एक एक थीम के अंदर, जो मैंने माइक्रो थीम आपको बताया था, और हर एक थीम का एक स्टैंडर्ड 1 पेज नोट्स बना लो कि भैया ये स्टैंडर्ड इंट्रो ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई भी डेटा पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड डायग्राम बना लिया, एग्जांपल लिख लिया, कोई केस स्टडी लिख ली। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वहां से मेरे को 3-4 ओरिजिनल पॉइंट मिल गए। मैंने कल को कोई टेस्ट दिया था, मैंने देखा मॉडल आंसर, यार ये 2-3 डायमेंशन या पॉइंट्स तो मुझे आते ही नहीं है, उठा के मैं अपने 1 पेज नोट्स में डाल लूंगा। आप समझो ना, एक जगह रखना है अपने को, क्योंकि जब एग्जाम पास में आएगा, मैं इतना थोड़ी ना अब स्टैंडर्ड बुक से भी रिवाइज करूँ, फिर कोचिंग के नोट से भी रिवाइज करूँ, फिर न्यूज़पेपर भी रिवाइज करूँ। इतनी स्कैटर्ड प्रिपरेशन में तो आप खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में डालोगे। वन सोर्स हमको चाहिए रिवीजन के टाइम पे, और वही इतना एनरिच होते रहना चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन में कि ट्रस्ट के साथ मैं उस पर रिलाई कर सकूं एग्जाम के पहले कि हाँ मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आई कैन जस्ट क्विकली रिवाइज, ठीक है? दैट इज पीवाईक्यू क्लस्टरिंग। आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क इज नथिंग बट लाइक आई सेड, आपके एक तो मेंस के नोट्स भी ऐसे बने चाहिए जैसे आंसर राइटिंग है, ठीक है? एंड आपको, सो दैट आप उसको रिफ्रेम कर पाओ जब आप एक्चुअल मॉक टेस्ट दे रहे होगे, आंसर लिख रहे होगे। प्रैक्टिस एंड रिहर्सल, ऑफ कोर्स ये भी एक अच्छी हैबिट है जो आप लोग उठा सकते हो। अगर आप दिन में 1-2 पीवाईक्यू भी लिखोगे, मतलब मेंस के पीवाईक्यू, 20-30 मिनट आप ऐसे रख सकते हो, जैसे दिसंबर के बाद जब आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 30 minutes a day you're just writing 2 questions of mains PYQ, GS paper 1, 2, 3, 4 और optional, ठीक है? And after 15 days you are attempting some mock test. So think how it will compound over next 3 months. You would have written 100 plus themes and MCQs and your mains answer writing, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। कई बच्चों को ऐसे होता है कि सर मैं अभी मॉक टेस्ट नहीं दे सकता, मेरा प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है? तो आप PYQs से शुरू करो, ठीक है? एड एक्स फैक्टर, लाइक आई सेड, एक्स फैक्टर नोट्स आई गिव यू एक्सेस। तो अपने अपने जो नोट्स हैं उनको एनरिच करना है बियॉन्ड स्टैंडर्ड बुक्स में, और क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरे को 1-2 आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता रहे अपने GS 1, 2, 3, 4 के आंसर का, दैट इज एक्स फैक्टर नोट्स, ठीक है? दिस इज पीवाईक्यू माइक्रो थीम प्लेटफॉर्म दैट वी हैव। एक ही प्लेटफॉर्म पे यू विल नो। अब जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो आपको बता देगा जुडिशरी में कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्या आए हैं, उसमें भी आपको बता देगा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ऐसे है, ये वो है। सो दिस इज आवर ओन पीवाईक्यू एनालिसिस प्लेटफॉर्म दैट वी गिव एक्सेस टू in our mentorship, right? One way to understand prelims के PYQ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ मेंस की बात कर रहा था, बट क्विकली मैं आपको प्रीलिम्स का बता देता हूँ। प्रीलिम्स के PYQ में ना बहुत अच्छा क्लू देता है यूपीएससी। कुछ नहीं करना है आपको, आप एक PYQ पकड़ो, उसका माइक्रो थीम समझो कि कौन सी माइक्रो थीम है, ठीक है? लेट्स से टेम्पल आर्किटेक्चर एक माइक्रो थीम है, ठीक है? टेम्पल आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर करके एक माइक्रो थीम है। अब मैंने देख लिया कि ये माइक्रो थीम है, उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखता हूँ मैं, दैट इज सेकंड लेयर ऑफ एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है प्रीलिम्स का, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। मैंने देख लिया कि अच्छा ये टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है कि टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा, वेसरा, द्रविड़ा, ये 3 ये पूछ रहे हैं कि ये 3 में व्हाट इज दिस अबाउट। सो नेचर ऑफ क्वेश्चन। थर्ड इज, जब मुझे पता है कि ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो मैं चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ता हूँ। उसमें से एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि दीज आर टाइप्स ऑफ म्यूजिकल घरानास। ये जो द्रविड़ा, वेसरा और नागरा स्टाइल है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक म्यूजिकल घराना के नाम है। UPSC is trying to confuse you. Of course, that's a wrong answer. This is a type of temple architecture. You'll take, let's say, option A.
बट उस दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। आप ये भी समझो यूपीएससी म्यूजिकल घराना क्यों दे रहा है ऑप्शन में। नेक्स्ट ईयर दे माइट आस्क अ क्वेश्चन ऑन म्यूजिकल घराना, दैट इज व्हाट द थर्ड पॉइंट सेज। यूपीएससी प्रीलिम्स के ऑप्शनल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो आपको क्लियर पैटर्न समझ में जाएगा। लास्ट ईयर जो ऑप्शन में था वो अगले साल क्वेश्चन में आ चुका है। इट इज सच अ ऑब्वियस पैटर्न, आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितने सारे ऑप्शंस थे जो लास्ट ईयर या पहले वो अब क्वेश्चंस बन गए। इट्स एक्सट्रीमली ऑब्वियस दैट यू कैन सी। एक बार आप बैठ के देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट इट हैपेंस विद। ठीक है, दिस इज द वे। तो करना कुछ नहीं है, आपको ऑप्शंस को एनालाइज करने, उनके नोट्स बनाते जाओ प्रीलिम्स में। बहुत सारा हेडेक यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। दैट इज द वे टू एनालाइज प्रीलिम्स पेपर्स in 3 level. So content for you for free. Like I said, I'll just quickly show you what is that context. So one is expected notes. ठीक है, so expected notes will help in your mains preparation. If you are in Delhi or in, ये वहाँ पे सारी प्रिंट आउट शॉप से मिल जाएंगे। if अगर आप नहीं हो तो I'll give you link का access. These are last year का मॉडल आंसर्स। माइक्रो थीम में you will have this kind of PDF. I'll just give you access. तो ऐसे डिवाइड होगा, आर्ट एंड फॉर्म्स, भक्ति मूवमेंट्स, और आप यहाँ पे देखो सारे PYQs लिखे हुए। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरी सिविलाइजेशन एंड देयर हाइलाइट्स की माइक्रो थीम हो गई है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा। तो दिस इज माइक्रो थीम। ये देखो पॉलिटी की माइक्रो थीम्स है। दिस इज फॉर मेंस, जैसे हैव अ ग्लांस, और PYQ भी लिखे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आपको पता है, देखो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 7 8 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 6 साल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की माइक्रो थीम कर लो तो इसको चेक मार्क करो कि भैया मेरा हो गया, आगे बढ़ो। So a lot of topics are UPSC's favorite. This is what I was talking about, NCRTs, annotated NCRTs. ऐसे कलर डिफरेंशिएटेड है। जहां भी आपको ग्रीन दिख रहा है यूपीएससी से वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक एग्जैक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड। ठीक है, तो हर एक कलर का मीनिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस वे यू विल बी एबल टू कवर एनसीईआरटी इन अ वेरी शार्प, जैसे रैंकर्स करते हैं, बहुत शार्प तरीके से करोगे। ये हमारे स्मैश मेंस है, समाचार मंथन से जो भी एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, उसका ये प्रॉपर प्रूफ है। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज से हिट रेशियो, समाचार मंथन से हिट रेशियो। सो दिस इज व्हाट दैट, ये भी आपको एक्सेस दे रहे हैं। देन ऐसे का डॉक्यूमेंट है कि एक पर्टिकुलर थीम ऑफ टॉपिक्स के अगर आपको इंट्रो स्टार्ट करने हैं, राइट, दिस इज, यू कैन सी दिस इज ऐसे डॉक्यूमेंट। तो अगर इंट्रोडक्शन में कौन से एनेक्डोट लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शंस, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल PYQs भी लिखे हुए हैं ऐसे का। तो ये ऐसे की प्रिपरेशन के लिए एक बिगिनर बच्चे को कैसे सोचना है, दैट हेल्प्स, दैट डॉक्यूमेंट विल हेल्प यू अलॉट। एक रैंकर का बेंचमार्क है, अभी आप बिगिनर लेवल पे हो तो वो रैंकर कैसे लिख रहा है, आप तुरंत पहुंच जाओगे वहां पे। बर्निंग इशू एज अ मैगजीन, तो क्या होता है, कई बार बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो बुलडोजर जस्टिस है, वो दे कैन आस्क इन अ मल्टीपल वे। लाइक वो GS पेपर 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों से ये गलती हो सकती है कि जब वो बुलडोजर जस्टिस पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ सोचेंगे कि यार ये तो GS2 टाइप का टॉपिक लग रहा है, तो मतलब वहीं से ही आएगा। बट यूपीएससी 4 में पूछ लेगा, 3 में पूछ लेगा, 1 में पूछ लेगा। तो अब आप आंसर GS2 के तरीके से लिख दोगे, लिखा पेपर 4 में रहे हो, तो नहीं मिलेंगे ना मार्क्स। वो डिमांड ही नहीं है यूपीएससी का। तो इसलिए वी वांट यू टू गेट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, one topic from all 4 angles, which is 1 2 3 4, in a proper way. So this magazine helps you with that. This is burning issue, this is monthly, and this also I'll give you access, उसी ड्राइव में होगा। One more example of burning issue, this is squad analyzed from all 4 papers। तो मतलब वो ये कि हमको नहीं पता है एज एन एस्पायरेंट बिगनर कि यार यूपीएससी पता नहीं ये कहाँ पे पूछ ले। ठीक है, और जब आप सोच के देखो, अगर आप ऐसे में भी कुछ लिख रहे हो तो आप तो चारों पेपर को मर्ज करके लिख रहे हो। एक वो वे ऑफ थिंकिंग डेवलप होना जरूरी है कि आप मेरे से पूछो, किसी भी एंगल से पूछो, 1 2 3 4 मैं रेडी हूँ। सो बर्निंग इशू वो कॉन्फिडेंस ले आता है कि अब ना मेरी थिंकिंग ही बहुत डिफरेंट फंडामेंटली हो चुकी है कि मैं एक टॉपिक को किसी भी एंगल से एनालाइज करके आपको आंसर्स दे सकता हूँ, कुछ तो लिख दूंगा मैं जितना भी हो सकता है। तो बर्निंग इशू उसमें हेल्प करता है। एंड हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करते, बर्निंग इशू सिलेक्टिवली कुछ इश्यूज को चूज करता है, 20 30 हर महीने, उस पे ही आपको प्रिपेयर करता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ ही कर दिया, बहुत ही शार्प तरीके से चूज करते हैं। इसमें प्रीलिम्स का भी होता है लास्ट में, अगर आप स्क्रॉल करोगे बर्निंग इशू का PDF तो यू विल फाइंड प्रीलिम्स का, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ही फैक्चुअल होता है। व्हाट वेयर यू कैन सी विच पर्सन प्लेसेस एक्सेट्रा, बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी प्रीलिम्स की। तो ये जो मैंने कंटेंट दिखाया है वो सारा का सारा PYQ बैक्ड है, कुछ भी अपने मन से नहीं किया है, यूपीएससी से 100% अलाइंड है। वी डोंट वांट कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट हो एज अ बिगिनर। मैंने शुरू में ही बोला था कि लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में सबसे जल्दी एग्जाम निकालना है, तो आप यूपीएससी के बिल्कुल क्लोजेस्ट रहो। जो वो चाह रहे हैं उसको समझो कि उनकी टेस्टिंग फिलोसफी क्या है, बिल्कुल इधर कहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। आप उन वो हमेशा ही हिंट दे रहे हैं, आप वो पकड़ो तो, राइट, वो आपको रिवॉर्ड करेंगे।
सेकंड, एक डेप्थ ऐड करनी है हमको अपनी प्रिपरेशन में। मैंने शुरू में बोला था, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, एक डेप्थ बिल्ड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जेनरिक कंटेंट नहीं है जो भी मैं आपको अभी दूंगा, सब में सब्सटेंशिएशन है, सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड। और जैसे मैंने दिखाया, डायग्राम्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, जो कि आपको विजुअली अपीलिंग, आपके आंसर्स को भी और आपको पढ़ाई करने में भी बहुत ही रीडेबल बनाएगा, कि जल्दी से कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए, आपको भी पढ़ने में बहुत इशू हो रहा है एक्सेट्रा, राइट? सो दैट्स नॉट द केस. That is content part. Then comes the mentorship. Mentorship is basically what we do in our mentorship program is we need to sit down. First, we ask you we'll ask you to fill a form, ठीक है, ओरिएंटेशन फॉर्म, एंड उसमें भी आस्क ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपने जो भी किया है, कितने नोट्स बनाए हैं, कितना पढ़ाई किया है, कितने टेस्ट दिए हैं, पिछले साल क्या किया था, कितने नंबर आ रहे हैं, जितना पकड़ सकते हैं उतना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। उसके बाद एक ओरिएंटेशन कॉल होता है आपके मेंटर के साथ, ठीक है, टू मेक श्योर कि यार हमने आपको प्रॉपर समझ लिया है कि अभी आप कहाँ पे हो, ये हमारा बेस पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, यहाँ से लेके जाना है आपको जहाँ भी लेके जाना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो और ये वाला कंटेंट होता है सारा पीवाईक्यू बेल्ट। तो फेजेस आप देख सकते हो, फर्स्ट फेज है यहाँ पे, सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड फेज ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ फेज ऑफ प्रिपरेशन। सो आपकी मेंटरशिप भी प्रॉपर फेज में होगी। ये जो मैंने पूरी टाइमलाइन दी है, वही टाइमलाइन पे हम स्टिक करके आपको पढ़ाते हैं। वी हैव प्रोड्यूस्ड इनफ नंबर ऑफ रैंकर्स थ्रू द सेम प्रोग्राम, यूएपी प्रोग्राम, राइट? एंड ये एक्चुअल मेंटरशिप का डैशबोर्ड है, जहाँ पे सब कुछ लॉग होता है, क्या हुआ मेंटरशिप बाद, कितने नंबर आ रहे हैं, कितना कवर कर लिया है, कितने माइलस्टोन हो गए। हमने सारे सिलेबस को एक माइलस्टोन में डिवाइड करके रखा है, तो जितने आप माइलस्टोन कवर करते जाओगे, यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। हर एक सिलेबस माइलस्टोन के बाद आपका एक टेस्ट होगा ही होगा। मेंटर आपके साथ टेस्ट के बाद बैठ के आपके साथ टेस्ट भी डिस्कस करेगा, ठीक है। सो दैट इज आवर मेंटरशिप, राइट? एंड लाइक आई सेड, द टॉपिक ऑफ दिस प्रिपरेशन वाज कि how to make the best use of next 20 months, but also how to audit your preparation every 30 days. So what we do is, ये 4 फिलोसफी पे हम आपकी हर महीने टेस्ट लेते हैं। यूएपी प्रोग्राम में सबसे पहले मेंटरशिप टेस्ट होता है। आप कुछ भी कवर करोगे किसी भी बुक से, किसी भी चैप्टर से, सबसे पहले आपका मेंटरशिप टेस्ट होगा। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं मानने वाला है कि सर मैंने पॉलिटी के 5 चैप्टर कर लिए। द सिंपल क्वेश्चन मेंटर विल आस्क, सो व्हाट? वो तो कोई भी कर लेगा। आपको लगता है बाकी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, वो कवर नहीं कर रहे, भाई आखिरी में लाइक आई सेड, ये एग्जाम है। आप मुझे ये प्रूव करो कि आपने जो 5 चैप्टर कर लिया उसका आप आंसर लिख सकते हो कि नहीं, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, मुझे आप पहले वो बताओ। बिकॉज उस दिन तो यही होने वाला है, जो एक्चुअल एग्जाम है मई और अगस्त में, मेंस और प्रीलिम्स, यही होने वाला है। उस रियलिटी को थोड़ी भूल सकते हैं हम जस्ट बिकॉज अभी एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये पढ़ लेना, मैंने बुक्स खत्म कर ली हैं, वो प्रिपरेशन, वो गलत है। आप भी इस भुलावे में मत आना है, नहीं आना है आपको, कि एक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, प्रिपरेशन को अच्छी बोल देना, वो दैट्स नॉट गुड। मतलब रियलिटी विल कैच अप सूनर और लेटर। उस जोन में हमको जाना ही नहीं है। खुद को रिग्रेस असेसमेंट में डालो। एक बेस पॉइंट, एक जब सिलेबस खत्म हो जाए, एक पार्ट ऑफ सिलेबस, अपने आप को फोर्स करो कि मैं एक टेस्ट दूंगा, पीवाईक्यू दे दो। आप तो टेलीग्राम में कितने सारे टेस्ट मिल जाते होंगे, ओआरएन में आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे। फोर्स करो कि मैं बैठूंगा एग्जाम में, फोर्स योर सेल्फ कि आई विल राइट टेस्ट, बिकॉज वी फॉलो दैट एंड इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स इन देयर फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट ओनली। तो यहाँ पे हर बार टेस्ट ही होगा। उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, समाचार मंथन का 20 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड 5 क्वेश्चन, तो वो एक वो टेस्ट होता रहता है। प्रीलिम्स के लिए डोमिनेट प्रीलिम्स होता है, डोमिनेट प्रीलिम्स के नोट्स भी होते हैं, तो फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट ही होते रहते हैं। और मेंस के टेस्ट जो होते हैं वो स्मैश मेंस में होते हैं। अरविंद सर एंड शुभम सर टेक्स केयर ऑफ दैट। एंड ऐसा नहीं है कि पहले सिलेबस कर लें फिर करेंगे, ये सब हम वी डोंट बिलीव इन इट, कि पहले कुछ पढ़ लेते फिर टेस्ट लेंगे। साथ में करवाते रहो। बच्चे को ये रियलाइज होता रहना चाहिए कि भैया अभी कितने पानी में कहाँ फंस रहे हैं। मेंटर को भी पता होना चाहिए कि कहाँ फंस रहे हैं। तो यहाँ पे मेंटर्स एक्सट्रीमली केयरफुल रहेंगे कि आपसे टेस्ट दिलवा के ही रहेंगे, वो पीछे ही पड़े रहेंगे कि फोर्स योर सेल्फ टू राइट टेस्ट, ठीक है। सो दैट इज द असेसमेंट पार्ट। अपने आप को अगर आप नहीं कहीं पे हो तो प्लीज मेक श्योर आप ये प्रिंट आउट लेके या पीवाईक्यूज ही लिखना शुरू करो, जो भी है। तो 3 ही पिलर है, स्ट्रेटेजी, कंटेंट एंड मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब फीडबैक, कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते रहना है, कहाँ पे फंस रहे हो, आ जाएगा। इतनी ऑनेस्टी से प्रिपरेशन कर लो, 100% यू विल मेक श्योर, राइट? एंड वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग बैच फॉर 26 एंड 27। सो ऑल यू हैव टू डू, अगर रिकवरी बैच, बिकॉज अगर आपने 5-6 महीने वेस्ट भी कर दिए तो इट्स कंप्लीटली फाइन। हम हाथ पकड़ के अब आपको ले जाएंगे, जो भी मैंने डिस्कस किया। राइट डाउन दिस नंबर, दिस इज माई ओन नंबर, 9266 777 821। either you'll talk to me directly or you'll talk to, अगर बिकॉज बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, और आई विल पास ऑन टू अदर मेंटर्स ऑल्सो। बट ये नंबर आप लिख लो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम मेंटरशिप एक्सेट्रा, जस्ट कॉल, विल डिस्कस, आई विल हेल्प यू विद द स्कॉलरशिप एक्सेट्रा ऑल्सो, एंड दैट्स इट।